Good morning. All the students will join the class quick fast. Lecture will be started very shortly. Okay, let us start the lecture. So I will share the screen. In previous lecture, we have to study about the various type of sequential circuit, comparison of sequential circuit and the combinational circuit, and the basic component of sequential circuit, that is the flip-flop. Study about the flip-flop, types of flip-flop, working of the flip-flop. So in previous lecture, we have already studied about the SR flip-flop, clocked SR flip-flop, characteristics table of the clocked SR flip-flop, characteristics equation will generate or obtained by using the K-map analysis and determine the characteristics equation for the clocked RS flip-flop. Next, we will discuss about the delay flip-flop. Delay flip-flop basically the here the delay flip-flop is basically using to avoid the race around condition which is present in the SR flip-flop. So today we will discuss the next type of the flip-flop, that is the JK flip-flop. Today we will discuss about the JK flip-flop. And in case of JK flip-flop, basically the JK flip-flop are also using to avoid the indeterminate condition in the SR flip-flop. When we see in the characteristics table of the clocked SR flip-flop, there is the indeterminate condition. There are when we indeterminate condition will be generated when S and R both are one. जैसे इस वाली टेबल में अपन देखें, जब S इक्वल एस भी वन पे अपन लॉजिक वन पे कनेक्ट करें, R भी लॉजिक वन पे कनेक्ट करें, तो उस केस में क्या आ जाएगी इनडिटरमिनेट कंडीशन. इनडिटरमिनेट कंडीशन दैट इज द रेस अराउंड कंडीशन, है ना. बोथ आर ट्राइंग टू गेट द higher level, so the output will be fluctuate between 0 and 1. 0 1 0 1 फ्लक्चुएशन चलता रहे, उस केस में क्या रहेगा, दैट इज नोन एज द इनडिटरमिनेट कंडीशन. सिमिलर वे एक और इनडिटरमिनेट कंडीशन कब जनरेट हुई, when s r is connected to 1, r is connected to 1, that is also known as the indeterminate condition. So basically in case of SR flip flop, that is the disadvantage, disadvantage that when it will be create the indeterminate condition when S and R both are connected to 1. Okay. So to avoid the such condition or such problem in SR flip-flop, we have to using the JK flip-flop. Basically, JK flip-flop will be overcome the such type of problem that is known as the indeterminate condition. So the indeterminate condition in SR flip-flop is solved in JK flip-flop. अब इन दोनों को अपन कंपेयर करें SR flip-flop और JK flip-flop को, तो अपन देख रहे हैं कि जैसे अपन ये वाली जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाया हुआ है क्लॉक्ड SR फ्लिप फ्लॉप के केस में, इनपुट में क्या है S एंड R, क्लॉक पल्स इज कनेक्टेड टू बोथ द एंड इनपुट. ठीक है, ये यूनिवर्सल गेट अपन ने काम लिए हैं. बेसिक यूनिवर्सल गेट आर यूजिंग टू डिजाइन द फ्लिप फ्लॉप. नॉर गेट काम में लिए हैं. इनपुट क्या है S एंड R, क्लॉक पल्स इनपुट में, आउटपुट क्या है Q एंड Q बार. अब अपन जेके फ्लिप फ्लॉप के सर्किट डायग्राम को कंपैरिजन करें तो सिमिलर वही है. J और K और क्लॉक पल्स इनपुट में गिवन है, इनपुट में दो एंड गेट हैं, आउटपुट में नॉर गेट हैं, और आउटपुट क्या है इनके क्यू एंड क्यू बार. बट डिफरेंस क्या है कि इस केस जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या करा, इनपुट ऑफ फर्स्ट एंड गेट इज कनेक्टेड टू आउटपुट ऑफ द क्यू.
सिमिलर वे एंड गेट सेकंड का जो इनपुट है वो सीधा किससे कनेक्ट कर दिया, आउटपुट क्यू बार से। ये जो कनेक्शन है इनपुट का आउटपुट से कनेक्शन किया हुआ है, ये दोनों में डिफरेंस है। डिजाइनिंग ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये इसका एसआर फ्लिप फ्लॉप में ऐसा कुछ नहीं है कि जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या है, इनपुट इज कनेक्टेड टू आउटपुट। So that is the basic difference in designing of SR flip flop and the JK flip flop. अब अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल को स्टडी करें तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या है, QT क्या है, प्रीवियस आउटपुट, J और K क्या है, इनपुट है, QT प्लस 1 क्या है, नेक्स्ट आउटपुट। ओके, सो फर्स्ट रो व्हेन द QT इक्वल्स टू 0, J इज 0, K इज 0, दोनों 0 0 कंडीशन है, तो इस केस में क्या आएगा, नो चेंज कंडीशन। नो चेंज कंडीशन में क्या रहेगा, नेक्स्ट आउटपुट इज इक्वल टू प्रीवियस आउटपुट। तो QT प्लस 1 किसके इक्विवेलेंट होगा, QT के। QT क्या है इसमें 0 है, तो QT प्लस 1 भी क्या होगा, यहाँ 0 होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्टेट में देखें, QT इक्वल्स टू 0, J इक्वल्स टू 0, K इक्वल्स टू 1। J इक्वल्स टू 0 है, K इक्वल्स टू 1 है, इस केस को अपन क्या कहते हैं, रीसेट कंडीशन। प्रीवियस अपन स्टडी करा हुआ है एसआर में। या J किसके रिलेवेंट है, S के, K किसके रिलेवेंट है, R के। सो J इक्वल्स टू 0 दैट इज नोन एज द रीसेट कंडीशन। रीसेट कंडीशन में आउटपुट क्या रहेगा, 0, ये 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट देखें अपन, QT इक्वल्स टू 0, J इक्वल्स टू 1, K इक्वल्स टू 0। कौन सी स्टेट है ये, सेट स्टेट। सेट स्टेट में आउटपुट क्या रहेगा, 1, ये 1 आ गया। अब नेक्स्ट आई इंडिटरमिनेट कंडीशन और रेस अराउंड कंडीशन। उस केस में क्या है, J इज आल्सो कनेक्टेड टू 1, K इज आल्सो कनेक्टेड टू 1, QT इक्वल्स टू 0। सो इन दिस केस स्पेसिफिकली फॉर द JK फ्लिप फ्लॉप, इन दिस केस नेक्स्ट स्टेट, जबकि एसआर फ्लिप फ्लॉप में नेक्स्ट स्टेट क्या आ रही थी यहाँ पे, इनडिटरमिनेट कंडीशन। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, जेके फ्लिप फ्लॉप के केस में क्या रहा कि नेक्स्ट स्टेट QT प्लस 1 एक्चुअली क्या है, प्रीवियस स्टेट का बार। प्रीवियस स्टेट क्या थी, QT, तो QT का बार। सो QT प्लस 1 इक्वल टू QT का बार, ये QT का बार। अब QT इसमें क्या, प्रीवियसली क्या था, 0 था, तो 0 का बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, तो ये 1 आ गया यहाँ। इज इट क्लियर। ओके, नेक्स्ट स्टेट अपन लें, QT 1 है, J 0 है, K 0 है, नो चेंज कंडीशन है। नो चेंज कंडीशन में क्या रहेगा, जो प्रीवियस इनपुट है वही नेक्स्ट आउटपुट रहेगा। प्रीवियस इनपुट QT क्या है, 1 है, तो QT प्लस 1 भी क्या होगा, 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट देखें, QT इक्वल टू 1, J इक्वल टू 0, K इक्वल टू 0, रीसेट स्टेट है, आउटपुट क्या रहेगा, 0। नेक्स्ट में QT इक्वल टू 1, J इक्वल टू 1, K इक्वल टू 0, सेट स्टेट है, आउटपुट क्या रहेगा, 1। ठीक है, रीसेट स्टेट में आउटपुट क्या रहेगा, 0, ये 0 आ गया। सेट स्टेट में आउटपुट क्या रहेगा, 1, ये 1 आ गया। ओके, नेक्स्ट फिर वही इनडिटरमिनेट कंडीशन, QT क्या है, 1 है, J भी 1 है, K भी 1 है, J और K बोथ आर input are connected to 1, so it is known as the race around condition or indeterminate condition. But in case of JK flip flop, in this case QT plus 1 equals to the previous state का बार, यानी QT का बार। QT यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 का बार करेंगे तो 0 आएगा, तो ये 0 आ गया। इज इट क्लियर, ये कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल क्लियर हुआ आपको। ठीक है, अब इसके रेस्पेक्टिव अपन के मैप डिजाइन करें। के मैप डिजाइन करें तो 1 1 कहाँ है, एसओपी फॉर्म के रेस्पेक्टिव 1 1 कहाँ प्रेजेंट है, इस वाले केस में। इस वाले केस में क्या है, 0 1 0, QT पे 0, J पे 1, K पे 0, QT पे 1, J पे 0, J पे 1 और K पे 0, तो ये वाला 1 आ गया, फर्स्ट 1 ये आ गया। सेकंड 1 क्या है, 0 1 1, QT पे 0, J पे 1, K पे 1, QT पे 0, J पे 1, K पे 1, तो ये सेकंड 1 आ गया। ठीक है, ये क्या है, QT पे 0 1, J पे 1 और K पे 0, QT पे 0, J पे 1 और K पे 0, तो ये वाला, ये फर्स्ट 1 आया, ये सेकंड 1 आया। ठीक है, अब थर्ड 1 अपन देखें तो QT पे 1, J पे 0, K पे 0, QT पे 1, J पे 0, K पे 0, ये थर्ड 1 आ गया और ये फोर्थ 1 आ गया। तो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट 1, ये सेकंड 1, ये थर्ड 1, ये फोर्थ 1, ये 4 1 प्रेजेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में, उसके रेस्पेक्टिव के मैप डिजाइन कर दिया। नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी इसमें, ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग कैसे बनाए, ये 2 का ग्रुप बना और ये कॉर्नर का 2 का ग्रुप बन गया। ठीक है, एक ग्रुप तो ये बना 2 का डबल का ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप बन गया, एक कॉर्नर का 1 और एक ये कॉर्नर का 1, तो ये 2, तो अल्टीमेटली कितने ग्रुप बने, 2 2 के 2 ग्रुप। क्लियर हुआ।
अब इसमें अपन इनकी ग्रुपिंग के बाद इसका सॉल्यूशन करें तो फर्स्ट ये ऊपर वाले जो दो का ग्रुप है उस केस में हॉरिजेंटल में क्यू की वैल्यू क्या है 0, तो क्यू की वैल्यू 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू बार से, तो ये क्यू बार आ गया, क्यू बार आ गया। वर्टिकली अपन देखें, वर्टिकल में थर्ड और फोर्थ कॉलम है, थर्ड और फोर्थ कॉलम में कॉलम क्या है, कॉमन क्या है j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे j से, तो j क्यू बार, फाइनल आंसर क्या है j क्यू बार। क्यूब बार को अपन डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो दैट इज द जे क्यूब डैश। इज इट क्लियर? अब नीचे वाला दो का ग्रुप लिया अपन ने, तो इसमें हॉरिजेंटल क्या है कॉमन क्यू इक्वल टू 1, तो क्यू आ गया, ठीक है। वर्टिकली देखें तो फर्स्ट और फोर्थ कॉलम कॉमन है, फर्स्ट और फोर्थ कॉलम में कॉमन क्या आ रहा है के की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट किससे करते हैं के बार से, तो के बार क्यू, तो फाइनल आंसर क्या है के बार क्यू या के डैश क्यू। So the qt plus 1 equals to j q bar plus k bar q. That is the final answer. Characteristic equation for jk flip flop. Is it clear? अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन या एक कंक्लूजन क्या आएगा कि व्हेन j इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 1 बोथ और दोनों टर्मिनल 1 पे कनेक्टेड हैं, तो एक्चुअली ये कौन सी कंडीशन थी इनडिटरमिनेट कंडीशन। इनडिटरमिनेट कंडीशन में क्या था कि प्रीवियस जो नेक्स्ट आउटपुट था वो प्रीवियस इन आउटपुट का क्या था कॉम्प्लीमेंट है ना, बार में था। तो इस केस में अपन ने क्या है इसको रिप्रेजेंट करेंगे qt प्लस 1 क्या है qt का बार, qt के बार को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं टॉगल से, टॉगल मतलब 0 का 1, 1 का 0, टॉगलिंग कहते हैं इसको टॉगल। सो दैट इज नोन एज द नेक्स्ट आउटपुट विल बी द प्रीवियस आउटपुट का क्या हो गया टॉगल फॉर्म, तो qt बार इज द टॉगल ऑफ qt। अगर दोनों 0 0 है, जे भी 0 के भी 0, तो ये कौन सी कंडीशन है नो चेंज कंडीशन। नो चेंज कंडीशन में क्या रहेगा नेक्स्ट आउटपुट है वो किसके बराबर होगा प्रीवियस आउटपुट के, so that is the qt plus 1 equals to qt। ये कंक्लूजन एक एनालिसिस है, ठीक है। तो ये जेके फ्लिप फ्लॉप के एडवांटेज हुए और वर्किंग हुई और कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट एक और फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप को क्या बोलते हैं टॉगल फ्लिप, टी टेंड्स टू द टॉगल। ओके, टी फ्लिप फ्लॉप में क्या करा अपन ने वही जेके फ्लिप फ्लॉप काम में लिया, सिमिलर वही जो जेके फ्लिप फ्लॉप अपन डिजाइन कर रहे हैं उन दोनों सेम वही जेके फ्लिप फ्लॉप अपन ने काम में लिया, पर चेंजेस कहाँ है कि जो जे और के इनपुट हैं, जे और के दो इनपुट थे उन दोनों को कंबाइनली कनेक्ट कर दिया, जे और के को दोनों जो अलग अलग इनपुट थे उनको कंबाइनली कनेक्ट करके एक सिंगल इनपुट दे दिया टी। बात है समझ, सेम जेके फ्लिप फ्लॉप का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, जो दोनों इनपुट है उनको कॉमनली कनेक्ट कर देना है और एक सिंगल इनपुट दे देना है टी। तो टी इज द इनपुट, क्लॉक पल्स इज द इनपुट, आउटपुट इज क्यू एंड क्यू बार। अब इसकी टेबल को देखें कैरेक्टरिस्टिक टेबल को, QT 0 है, T पे 0 है, QT प्लस 1 0 आ गया, QT पे 0 है, T पे 1 है, QT प्लस 1 1 आ गया, QT इज 1 है, T पे 0 है, QT प्लस 1 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज द QT इज 1, T इज 1, QT प्लस 1 इज 0। इसके रेस्पेक्टिव अपन ने क्या है कि के मैप डिजाइन करा, के मैप डिजाइन करने के बाद ये अपन ने 1 1 की वैल्यू को पुट ऑन करा एसओपी फॉर्म के रेस्पेक्टिव। तो पहला 1 कहाँ प्रेजेंट है जहाँ QT की वैल्यू 0 है, T की वैल्यू 1 है, यहाँ QT की वैल्यू क्या है 0 है और T की वैल्यू 1 है, तो ये फर्स्ट 1 यहाँ आ गया यार, ये फर्स्ट 1 आ गया। दूसरा 1 कहाँ प्रेजेंट है जहाँ QT की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 0 है, यहाँ QT की वैल्यू 1 है, T की वैल्यू 0 है, तो ये सेकंड 1 आएगा। इन दोनों के रेस्पेक्टिव कोई ग्रुपिंग नहीं बनना है, इंडिविजुअल अपने को लेना है। तो इस फर्स्ट 1 के लिए देखें तो हॉरिजेंटली तो क्या है Q की वैल्यू 0 है और वर्टिकली T की वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या आएगा T क्यू बार, ये T क्यू बार आ गया। दूसरे वाले 1 के लिए हॉरिजेंटली क्या है Q की वैल्यू 1 है और वर्टिकली क्या है T की वैल्यू 0, तो ये क्या आ जाएगा QT बार, ये QT bar। So the final that will be the characteristic equation is the TQT plus 1 equals to TQ bar plus T bar Q। एक्चुअली कौन सा गेट बन के आ रहा है एक्सक्लूसिव और गेट की तरह वर्क करेगा, ठीक है। फाइनली कंक्लूजन क्या निकला कि एट t इक्वल्स टू 1 लें तो QT प्लस 1 क्या है QT का बार, और t इक्वल्स टू 0 लें तो QT प्लस 1 क्या आ रहा है QT के इक्वल। यहाँ पर देखें इस टेबल के रेस्पेक्टिव, जब t की वैल्यू 0 है तो आउटपुट क्या है प्रीवियस इनपुट के बराबर, कोई टॉगलिंग नहीं होगी। जैसे अपन कॉमन सेंस में देखें कि टॉगलिंग कब होगी, टॉगलिंग तभी पॉसिबल है जब टी हाई लेवल पे इनपुट पे कनेक्टेड हो, इनपुट क्या हाईली कनेक्टेड हो। तो अगर टी पे 0 है तो कोई टॉगलिंग नहीं होगी, जो प्रीवियस था वही नेक्स्ट में आ गया, प्रीवियस 0 था तो नेक्स्ट भी 0 आ गया। अब जैसे टी की वैल्यू 1 करी
तो टॉगलिंग करेगा, टॉगलिंग का मतलब बार करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब जैसे अपन ने सेकंड वाली रो में देखो टी की वैल्यू 1 रखी, प्रीवियसली 0 था, टॉगल कर दिया, 0 का टॉगल क्या होगा 1, तो आउटपुट क्या आ गया 1, ये 1 आ गया। 0 का क्या कर दिया टॉगलिंग 1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगेन वाली देखें, टी की वैल्यू 0 है, प्रीवियस 1 बना हुआ था तो 1 की 1 ही आएगा आउटपुट में, तो ये 1 आ गया। जैसे टी की वैल्यू 1 करी तो प्रीवियस का क्या कर देगा टॉगल कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा। प्रीवियसली 1 था तो 1 का टॉगल क्या हो जाएगा 0, तो आउटपुट 0 आ गया। Is it clear? So conclusion is that when t equals to 1 or high, output or next state will be toggle or change. Toggle that means complement bar. तो आउटपुट अगर t की वैल्यू 1 है तो उस केस में आउटपुट क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। किसका कॉम्प्लीमेंट होगा, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो आउटपुट और द नेक्स्ट स्टेट विल बी टॉगल एज कंपेयर टू प्रीवियस स्टेट। इज इट क्लियर? ठीक है। Next is the race around condition in JK flip flop. By the way, अगर अपन रेस अराउंड कंडीशन कैसे करें कि JK फ्लिप फ्लॉप में रेस अराउंड कंडीशन को अपन आइडेंटिफाई करना चाहें कि when the J, अगर अपन नैंड गेट के रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करें, ठीक है, नैंड गेट के रेस्पेक्टिव फ्लिप फ्लॉप डिजाइन करा, J इक्वल्स टू 1 K इक्वल्स टू 1 पुट ऑन करा, रेस अराउंड कंडीशन आई। अब रेस अराउंड कंडीशन में एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे इस वाले केस में अपन देखें, इस वाली पीपीटी में जब क्लॉक, जैसे इस वाली टाइम ड्यूरेशन की क्लॉक है, जैसे कैपिटल टी क्लॉक टाइम ड्यूरेशन की क्लॉक है, तो इसमें क्या जो क्यू है वो कैसे कंटिन्यूस टॉगल कर रहा है। ये 1 आया तो ये 0 चला गया, ये फिर 1 आया ये फिर 0 चला गया, तो 0 1 0 1 में टॉगलिंग हो गई है ना। पहले 1 था फिर 0 हुआ फिर 1 हुआ ये फिर 0 हो गया, तो 4 बार टॉगलिंग हो गई, फ्लक्चुएशन आ गया। सो दैट इज नोन एज द रेस अराउंड कंडीशन। और 0 पे कोई चेंज नहीं आया, पर जैसे ही अपन ने 1 दिया तो फिर इसमें टॉगलिंग वाली प्रॉब्लम आ गई, या रेस अराउंड कंडीशन या फ्लक्चुएशन वाली कंडीशन आ गई। सो दैट इज नोन एज द रेस अराउंड कंडीशन व्हेन वी कंसीडर इन द जेके फ्लिप फ्लॉप। अब देखते हैं इसे, कंसीडर इट इज ए पॉजिटिव एज ट्रिगर, है ना। कंसीडर व्हेन द सर्किट इज द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड कौन सा, ये पॉजिटिव में ट्रिगरिंग है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ये वाला पोर्शन कौन सा कहलाएगा, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, दिस वन इज द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड, दिस इज द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। सो इन केस when the consider it is a positive age trigger for one clock period, q will be, हेलो 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 सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके सर। अभी ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ओके, ठीक है। So when we consider it is a positive age triggered, positive age triggered, that means this one is the positive age triggered of clock pulse। जैसे clock pulse को अपन स्क्वायर वेव फॉर्म में कंसीडर करें तो इनिशियल वाली जो एज है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, ठीक है। दिस वन पोर्शन इज द नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। दिस इज द पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड दिस इज द नेगेटिव। तो जैसे पॉजिटिव एज हुआ इसमें ट्रिगरिंग हुई, ट्रिगरिंग के बाद इसमें क्या आई, टॉगलिंग वाली प्रॉब्लम, ठीक है। So for consider it is the circuit is a positive age triggered for one clock period। one clock period में क्या हुआ, Q will be change और toggle many time, है ना, 0 1 0 1 0 1 क्या करता रहा, toggle करता रहा। So this is known as the race around condition। So as in figure, consider initially Q equals to 0, so at clock equals to 1 and the condition is J equals to K equals to 1, Q will be changed toggle from 0 to 1, that is Q equals to 1। अब अल्टीमेटली क्या हुआ कि जैसे अपन अभी तक, अभी जस्ट प्रीवियसली अभी थोड़ी देर पहले अपन ने स्टडी करा है इसी में, इसी लेक्चर में, कि अगर अपन J इक्वल्स टू K इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, ठीक है ना, रेस अराउंड कंडीशन उसको मान के चल रहे हैं, जैसे SR फ्लिप फ्लॉप में था,
तो इस केस में क्या था, नेक्स्ट स्टेट एक्चुअली क्या थी, प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट। तो बाय द वे अगर इनिशियली q इक्वल टू 0 है और j इक्वल टू k इक्वल टू 1 पे दे रहे हैं, क्लॉक पल्स 1 अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, इसके हाँ जाओ। So in this case, the output will be the complement of the previous input. Previous अगर q इक्वल टू 0 है तो नेक्स्ट 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1. So next q इक्वल टू 1. Okay. So time is required to change state. This is less than as compared to clock time period. अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे 0 से 1 या 1 से 0 में जो चेंज होने के लिए टाइम चाहिए, यानी इस वाले केस में ये वाला जो टाइम है स्मॉल टी, ये जो स्मॉल टाइम है ना जिसमें 0 से 1, 1 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, दिस वन टी is very less as compared to this one timetable of this time duration of the clock pulse. इस क्लॉक का टाइम ड्यूरेशन तो बड़ा है, ये वाला टाइम ड्यूरेशन, और इसका जो छोटे वाला है ये q की वैल्यू जहाँ 0 से 1 और 1 की से 0 में कन्वर्ट हो, ये स्मॉल टी है। ये स्मॉल टी क्या है, स्मॉल है एज कंपेयर टू क्लॉक पीरियड, है ना, क्लॉक पीरियड तो बड़ा है, ये वाला पोर्शन छोटा है। सो इन दिस केस time is required to change the state t, this is less than as compared to clock time period. Clock time period बड़ा है और time required to toggle 0 to 1, 1 to 0 is less, ठीक है। So after t as clock is 1, j equals to k equals to 1, so the q again is toggle q equals to 0 to 1. So अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अगर जैसे क्लॉक की वैल्यू 1 बनी हुई है, ठीक है, j और k पे भी 1 बना हुआ है, तो ये टॉगल करेगा। अगर प्रीवियसली 0 था तो 1 बना दिया, 1 था तो 0 बना दिया, 0 था तो 1 बना दिया, 1 था तो वो 0, तो वो कंटिन्यूअस क्या चलती है, उसमें टॉगलिंग वाली प्रॉब्लम चलती रहेगी, ठीक है, 0 1 0 1 0 1, ठीक है। सो इन दिस केस, so we are getting the unwanted train of pulse when clock equals to 1 and j and k both are equals to 1. So this is the drawback of level triggering jk flip flop, ठीक है ना। पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर, लेवल ट्रिगरिंग के वाले केस में ये प्रॉब्लम इसमें क्रिएट होती है, ठीक है। इसमें ये एक प्रॉब्लम है कि जैसे अपन क्लॉक पल्स में अप्लाई करेंगे, क्लॉक पल्स का टाइम ड्यूरेशन बड़ा है और टॉगलिंग का टाइम ड्यूरेशन जो स्मॉल टी है वो छोटा है, तो वो बड़े टाइम पीरियड में क्या कंटिन्यूअस टॉगल करता रहेगा, 0 है 1 करेगा, 1 है तो 0 है। टॉगल क्यों कर रहा है, क्योंकि वो प्रीवियस स्टेट का कॉम्प्लीमेंट करता रहेगा। प्रीवियस कॉम्प्लीमेंट 0, प्रीवियस स्टेट 0 है तो 1 बना दिया, फिर 1 है तो उसका 0 कर दिया, 0 है तो 1 कर दिया, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट या टॉगलिंग वाली प्रोसेस करता रहेगा। तो इस केस में क्या है, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व इन मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। So by using the master slave JK flip flop, this problem can be sorted out, ठीक है। अब मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप में एक्चुअली क्या है कि अपन दो तरह के फ्लिप फ्लॉप काम में लेंगे, दो फ्लिप फ्लॉप रहेंगे, एक मास्टर रहेगा दूसरा स्लेव रहेगा, दो फ्लिप फ्लॉप अपन काम में लेंगे इस तरह से, ठीक है ना। एक ये फ्लिप फ्लॉप बनाया अपन ने, है ना, JK फ्लिप फ्लॉप ही लिया, दूसरा एक ये वाला फ्लिप फ्लॉप लिया, ठीक है, ये वाला फ्लिप फ्लॉप लिया, ठीक है। एक ये फर्स्ट वाला कौन सा है, मास्टर है, ठीक है। दूसरा वाला फ्लिप फ्लॉप कौन सा है, स्लेव फ्लिप फ्लॉप है ना। ये भी फ्लिप फ्लॉप है और ये दो फ्लिप फ्लॉप का कॉम्बिनेशन करा है अपन ने, ठीक है। इस तरह से इनको कनेक्टेड करा है। एक वाले में अब जैसे इसके कनेक्शन देखो तुम, ये वाला जो इनपुट था ये किससे कनेक्ट करा, नीचे वाले आउटपुट से, क्यू बार से, यानी एंड गेट फर्स्ट का जो इनपुट है वो एक्चुअली क्यू से कनेक्ट नहीं करके अपन किससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्यू बार से, ठीक है। दूसरे का जो इनपुट है वो अपन जो पहले क्यू बार से कनेक्ट कर रहे थे वो किसको अपन कनेक्ट कर रहे हैं, क्यू से, तो ये ट्विस्टेड आ गया आउटपुट, जो आउटपुट का कनेक्शन अपन ट्विस्टेड फॉर्म में ले रहे हैं। फर्स्ट का इनपुट आउटपुट के दूसरे वाले से, दूसरे का इनपुट आउटपुट के फर्स्ट वाले इनपुट से, ठीक है, तो ये ट्विस्टेड फॉर्म में इसको कनेक्ट करा। दूसरा अपन ऑब्जर्वेशन क्या कर रहे हैं कि जो क्लॉक पल्स है ना, जैसे अपन दोनों को इनपुट में दिया, यहाँ भी क्लॉक पल्स को कनेक्ट करा, तो बीच में अपन ने क्या करा, नॉट गेट लगा दिया, बीच में अपन ने क्या लगाया, नॉट गेट। नॉट गेट अपन क्यों लगाना है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉक पल्स जैसे मैं 1 दूं यहाँ,
तो 1 तो सीधा सीधा यहाँ 1 और 2 पे तो चला गया 1, क्लॉक पल्स 1 अगर अपन देते हैं, हाई लेवल देते हैं। पर इस इन्वर्टर ने क्या करा, जो 1 था इसको बनाया 0, और 0 करके दोनों को 0 0 दे दिया, तो ये तो इनएक्टिव हो गया, ठीक है ना। और ये फर्स्ट वाला क्या हो गया, एक्टिव हो गया। जब क्लॉक पल्स 1 है तब ये वाला एक्टिव है और ये इनएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अपन देते हैं कि एट ए टाइम एक ही काम करेगा, फिर दूसरे ड्यूरेशन में दूसरा वाला काम करेगा। बाकी जे और के इनपुट कनेक्टेड कर दिए, क्लॉक पल्स इनपुट में कनेक्ट कर दिया, आउटपुट क्यू एंड क्यू बार ले लिया। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है, ये पल्स ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है ना। इससे पहले अपन कौन से देख रहे थे, एज ट्रिगर्ड या लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। ये कौन सा है, पल्स ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। अब इस केस में क्या हुआ, अब इसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक टेबल देखें तो J = 0, K = 0, QT + 1 क्या है, QT है, दोनों 0 0 हैं। कौन सी कंडीशन है, नो चेंज कंडीशन है। तो जो प्रीवियस इनपुट था वही नेक्स्ट, प्रीवियस आउटपुट था वही नेक्स्ट आउटपुट रहेगा। सो QT + 1 = QT, नो चेंज कंडीशन, ठीक है। When J = 0, K = 0, रीसेट कंडीशन है, आउटपुट क्या रहेगा, 0, ये 0 आ गया। When J = 1, K = 0, सेट स्टेट है, आउटपुट क्या आएगा, 1, ये 1 आ गया। When J = 1, K = 1, कौन सा आएगा, नेक्स्ट आउटपुट क्या रहेगा, प्रीवियस आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट या टॉगल फॉर्म। सो द QT + 1 क्या आएगा, QT का बार, QT + 1 क्या है, QT का बार, टॉगल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ देखो, इस सबसे इंपॉर्टेंट है साइकिल ऑफ द क्लॉक। ये जैसे क्लॉक साइकिल है, क्लॉक अपन ने साइकिल दी। अब उस क्लॉक में क्या हो रहा था, जैसे अपन प्रीवियस देख रहे थे, इस क्लॉक में क्या, ये टॉगलिंग वाली प्रॉब्लम आ रही थी। अब देखते हैं ये मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में टॉगल वाली प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी। तो इस वाले केस में ये टॉगल वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि एट ए टाइम जैसे क्लॉक पल्स अपन 1 दिया तो ये फर्स्ट वाला एक्टिव हुआ, दूसरा इनएक्टिव रहा, ठीक है। जैसे ही क्लॉक पल्स को अपन 0 देंगे, 0 देने के बाद ये दोनों तो 0 0, तो ये इनएक्टिव हो गए फर्स्ट वाला। अब 0 का कॉम्प्लीमेंट इस नॉट गेट ने क्या कर दिया, 1, तो ये 1 कहां चला गया, दूसरे वाले स्लेव में। तो स्लेव में 1 1 जाते, इसने इसको एक्टिव कर दिया। तो एट ए टाइम फर्स्ट तो पहले मास्टर एक्टिव हुआ, दूसरे बारे में स्लेव एक्टिव हुआ, फिर मास्टर एक्टिव हुआ, फिर स्लेव एक्टिव हुआ, ठीक है। तो 1 क्लॉक ड्यूरेशन में क्या हुआ, एट ए टाइम मास्टर ही एक्टिव हुआ। अब जैसे केस फर्स्ट लिया अपन ने, J = 0, K = 1, assume QT = 1, QT bar = 0, clock = 1, master is active, slave is inactive, output of master = S = 1, R = 0। अब जैसे क्लॉक 0 दिया तो स्लेव एक्टिव होगा, मास्टर इनएक्टिव होगा। सो इट्स input is S and R, so its input at the NAND 5 and 6, 5 = 0, NAND 6 = 0, Q = 1 and Q bar = 0। क्लॉक 1 मास्टर एक्टिव। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट केस, जैसे ये वाला आप चीज देखें अपन, जैसे जो मेन प्रॉब्लम थी कि J = K = 1 दे रहे हैं अपन, उस केस में अज्यूमिंग इनिशियली क्या है, Q = 1 और Q bar = 0। इस वाले केस में अज्यूम करा है Q = 1 है, Q bar = 0, J और K बोथ पे क्या दे दिया, 1 1 दे दिया अपन, ठीक है। तो क्लॉक = 1, जैसे क्लॉक अपन ने 1 दी तो मास्टर एक्टिव हुआ, मास्टर एक्टिव होते क्या हुआ, मास्टर एक्टिव S = 0, R = 1, ठीक है। S = 0, R = 1। सो नेक्स्ट में जैसे क्लॉक 0 हुई, क्लॉक 0 जैसे कंप्लीट साइकिल क्या है, ये जैसे पॉजिटिव है फिर नेगेटिव, तो ये एक कंप्लीट साइकिल है 1 टाइम पीरियड के लिए, है ना, 1 क्लॉक पीरियड के लिए। एक में ये वाला पार्ट है और एक में ये वाला पार्ट। एक वाले पार्ट में मास्टर एक्टिव हो रहा है, दूसरे में स्लेव एक्टिव हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, क्लॉक 1 रहा, मास्टर एक्टिव हुआ, क्लॉक 0 हुआ, स्लेव एक्टिव हुआ। तो Q = 0, Q bar = 1 मींस आउटपुट इज टॉगल, और कंप्लीट ड्यूरेशन में आउटपुट क्या हो गया, टॉगल हो गया। मतलब पहले अगर उसमें Q = 1 है, Q bar = 0 है, तो एक 1 क्लॉक ड्यूरेशन में क्या बन गया, ये Q = 0, यानी 1 का कॉम्प्लीमेंट, ये 1 था, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, 0। यहाँ Q bar की वैल्यू 0 थी, यहाँ Q bar की वैल्यू क्या, 1, तो टॉगल हो गया। दैट मीन्स 1 क्लॉक ड्यूरेशन में कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन नहीं हुआ, यहाँ पे एक ही चेंजेस जब आए, एक ही वेरिएशन आया। वो क्या हुआ, जो पहले Q1 था वो 0 हो गया, जो Q bar 0 था वो 1 हो गया। तो दैट मीन्स ए सिंगल टॉगल, एक केवल सिंगल टॉगल हुआ, ना कि कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन हुआ। सो इन 1 क्लॉक ड्यूरेशन देयर इज ओनली 1 टाइम टॉगल, Q change from 1 to 0 when J = K = 1. So initially Q = 1, Q bar = 0, but after apply 1 clock, output is toggle from
Q इक्वल टू 0 एंड Q बार इक्वल टू 1। तो केवल वन टाइम टॉगलिंग इसमें पॉसिबल हुआ। दैट इज द एडवांटेज ऑफ द मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप। Age triggering in this period of clock pulse applied to the flip flop is less as compared to propagation delay of flip flop. Thus, the race around condition is escaped. Okay, the latch on flip flop का जैसे मैं previously बता चुका हूँ, latch क्या है? Pulse triggered है। flip flop क्या है? Age triggered है। That is the difference between the latch and flip flop। जैसे pulse लिया, pulse level triggering कैसे? ये level triggering। दिस वन द लेवल ट्रिगरिंग, ऊपर वाले पोर्शन से, दैट इज द लेवल ट्रिगरिंग। एज में क्या रहेगा? ये एज के रेस्पेक्टिव, पॉजिटिव एज ट्रिगर, नेगेटिव एज ट्रिगर। पॉजिटिव डायरेक्शन में ऊपर डायरेक्शन में तो पॉजिटिव एज ट्रिगर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव एज ट्रिगर। एस आर लैच क्या है? आउटपुट क्यू एंड क्यू बार चेंज एट लेवल ऑफ पल्स। एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है? आउटपुट ऑफ क्यू एंड क्यू बार चेंज एट एज ऑफ द पल्स। ऑल द फ्लिप फ्लॉप आर एज ट्रिगर्ड। अब कन्वर्जन देखें, डी फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करें तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डी इक्वल्स टू टी क्यू बार प्लस टी बार क्यू। टी को डी में कन्वर्ट करें तो टी इक्वल्स टू क्यू एन बार प्लस डी क्यू एन बार प्लस डी बार क्यू एन। दैट इज द कन्वर्जन फ्रॉम डी टू टी एंड टी टू डी। नेक्स्ट, एस आर को जेके फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करना चाहे तो उस केस में क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएंगी? एस इक्वल्स टू जे क्यू बार R equals to KQ. Okay, that is the circuit diagram. ये इसका सर्किट डायग्राम, ये नेक्स्ट वाले का सर्किट डायग्राम। JK to SR, this conversion is not possible. SR let me SR converted into the T, S equals to TQ bar, R equals to TQN. SR को D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करें, that is the S equals to D, R equals to D bar, ये इसका टेबल, इसका सर्किट डायग्राम। J को T में कन्वर्ट करें तो J equals to T, K equals to T। एंड द समरी में अपन देखे हैं कि जैसे क्यू एन क्या है? प्रीवियस आउटपुट। क्यू एन प्लस वन क्या है? नेक्स्ट आउटपुट। जे और के की वैल्यू गिवन है, जे और के की टेबल है, एस आर की है, डी की है, टी की है। तो ये समरी है एक्साइटेशन टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप। दैट इज द कन्वर्जन फॉर वेरियस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो अभी जो आज के लेक्चर में अपन ने जो फ्लिप फ्लॉप का रिमेनिंग वाला पार्ट था वो फ्लिप फ्लॉप की स्टडी करी। अभी इनकी फ्लिप फ्लॉप के जो मैंने बताया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और इसमें तुम्हें कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आ रहा हो तो तुम अभी मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। बाकी तो आप अपनी बुक से, और इसकी पीपीटी मैंने अपलोड कर दी है गूगल क्लासरूम पे। जो मैंने लेक्चर है इसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अभी कुछ देर में ही कॉलेज के यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड कर दूँ। तो अभी इसको आप, इस लेक्चर को जो मैं अपलोड करूंगा उसको डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, और उसमें कोई इश्यू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस करो। फ्लिप फ्लॉप इज अ मच मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस सब्जेक्ट, ठीक है ना? फ्लिप फ्लॉप में जहाँ कभी कोई भी इशू या कोई भी डाउट आ रहा है तो तुम मुझसे डायरेक्टली फोन कर सकते हो, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हो, गूगल क्लासरूम पे क्वेश्चन रेज कर सकते हो, उस पर पूछ सकते हो। अदरवाइज तुम अपने जो पर्सनल मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर तुम डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है ना? पर इस फ्लिप फ्लॉप को बहुत ही मैंने केयरफुली और बहुत ही स्लो पढ़ाया तुम्हें, तो होप सो ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज अपने बुक्स जो मैंने पीडीएफ बताई थी वो डाउनलोड कर ली होंगी आप लोगों ने, तो उनमें स्टडी करो। इस जो वीडियो लेक्चर है आज का उसकी स्टडी करो। उसके बाद भी कोई इशू है, कोई डाउट आता है तो मुझसे डिस्कशन करना, ठीक है? ओके, थैंक यू।